uh, the management of Millennium Roots College, very beloved and dear students from A level. Assalamu alaikum and a very good afternoon to you all. To begin with, let me confess that I am struck by a severe nostalgia, and my coming over to your college and this classroom reminds me of my school days, my college days, and then finally the professional that I chose and began to go to Sindh Medical College. And since then I think I had a dream like Martin Luther King. He would used to say, we have a dream and yes, we can do it. So I would like to recite a verse in Urdu that आसमानों पे नजर कर अंजुम महताब देख, आसमानों पे नजर कर अंजुम महताब देख, सुबह की बुनियाद रखनी है तो पहले ख्वाब देख. So all of us have to have a kind of a dream. Moving on from my primary education, which I completed from Fazlur Rahman School near Urdu Bazaar, जो city area में है. I struggled very hard to secure my admission in BVS Parsi School. I did my matriculation, my graduation from BVS Parsi School. Then I failed to get admission in DJ College or Adamji College. I was an average student, not a very studious kind of. एग्जाम से पहले थोड़ा पढ़ लेते थे और बाकी काम चला लेते थे. So I got admission in National College, which is located in near Bahadrabad, Sharfabad area. And there was no concept of career counseling then. So on my parents' insistence, I had to become doctor and had to pursue this medical profession. I could not get admission in my first attempt. मैंने pre-medical से intermediate किया. I failed to get admission by 1 mark. I had to repeat 10 papers. मैंने 10 पर्चे repeat किए. And yet again, I failed to get admission in Karachi. I got admission in Liaquat Medical College, Jamshedpur. Now, the injustice and the discrimination that was actually haunting the students and youth in that particular era began to also affect me, my psyche, and it began to generate a kind of a reaction also. And that was a quota system, that good students securing good marks and good grades from urban areas were not able to get admission in professional colleges, medical profession, engineering profession, or any other profession. This is a challenge we still face, yeah. But as of now, it is an unconstitutional thing, which is still being, which is in practice, which is in vogue, and but it has lived out its life. It expired in 2030. उसमें खत्म हो गया. तो but then I managed within 3 months. It was like the environment was not very good. It was too polarized then because of this quota system, then different students movement. Then it was a time when General Ziaul had imposed a martial law in Pakistan. Because students movement bhi thi. So my parents actually saw me off for the Liaquat Medical College, Jamshedpur. जैसे किसी बेटी को विदा करते हैं, उसकी शादी होती है, तो literally my mother was crying. फिर they were hearing different kind of stories that some of the students were not treated very well in the interior Sindh area. तो वो वहाँ उस किस्म का माहौल उस जमाने में बहुत ज्यादा था. In any case, I managed to get transfer through a mutual migration process. One of the students preferred to go to Liaquat Medical College, Jamshedpur, and I got transferred into Sindh Medical College,
which now is known as the Jinnah Sindh Medical University. तो मैंने फिर वहाँ से graduation की, but that quota system had affected me so badly that when I found that there was a student political movement or organization, namely All Pakistan Muhajir Students Organization, and there were so many other student organizations like National Students Federation, People's Student Federation, and Liberal, and so many others, and then with the ethnic and nationality background also. So then I preferred to choose APMSO, and I joined them, this party. And I found that as if we had put the pulp of our fingers on the pulse of people. The response was immense. People began to join us. They thronged at our doors, and we immediately saw a big mobilization coming up. My purpose in joining APMSO was to serve the student fraternity through engaging them into social activities, through engaging them into patient aid, welfare, blood bank, and things like that, and publish some publications which could be of some easy support for the students. फिर उसमें we began to teach also our juniors. उसमें जब अगर लड़कियों को पढ़ाना होता था तो फिर मजबूरी से लड़कों को भी पढ़ाना होता था, तो फिर दोनों को हमने पढ़ाया, बच्चों को पढ़ाया, अपने जूनियर्स को पढ़ाया. लेकिन जब when I was about to complete my graduation from Sindh Medical College, I actually tried to join this post-graduation in plastic surgery, and I literally did some training. मैंने grafting भी की, यहाँ से पैच उठा के बर्न पेशेंट को, यहाँ भी हर्निया के ऑपरेशंस भी किए. ये इस मास्क की उस वक्त वैल्यू बहुत ज्यादा थी. अब तो कोविड ने हर एक को ये मास्क पहना दिया. एवरीबडी लुक्स लाइक a surgeon in some kind of an operation theatre. And this operation theatre is not to remove and do a radical surgery or amputation and remove a diabetic foot या कोई tumor or some kind of a chronic ailment. But ये मास्क अपनी कि prevention is better than cure. आपको SOPs को follow करना है. लिहाजा now this has become a part of life. वरना ये सिर्फ सर्जिकल मास्क था और हमें ऑपरेशन थिएटर में मिलता था. तो I had opened my books to do post-graduation in plastic surgery, and all of a sudden local government elections were announced. So my party chose to field me as a councillor candidate from one of the union councils in Karachi, and it was a landslide because people were fed up of the traditional and conventional politics then. जो politics थी, चाहे वो मजहबी बुनियाद पर थी, चाहे वो किसी और प्रोग्रेसिव थी, सोशल पॉलिटिकल मूवमेंट्स थी, तो people literally were fed up, and urbanites, Karachi, Hyderabad, Sakkar, they just were waiting for a party which could selectively and exclusively address their issues, जिसमें admission in professional colleges, and then to secure jobs in public sector. तो वहाँ उनको प्रॉब्लम है. तो इसलिए लोगों ने यही महसूस किया कि हमें APMSO ज्वाइन करनी चाहिए, और हाउस जॉब कंप्लीट किया. थोड़ी सी प्लास्टिक सर्जरी में आई कंप्लीटेड माय ट्रेनिंग, एंड ऑल ऑफ अ सडन व्हेन आई got elected as the councillor, there were indirect elections for the mayorship of seats in Karachi and Hyderabad, and because of the landslide and sweeping victory, we were able to get our mayors from both cities, Karachi and Hyderabad, elected unopposed. हमारे सामने कोई candidate नहीं था. So I became the youngest ever mayor of not only any big city in like Karachi in Pakistan, but I think it is a Guinness Book World Record also. मुझे पता है इसमें तालियां बजती, मैं पहली ये वाली बात करते थे. इतनी मैंने मेहनत की. Anyhow, so
mayorship was not an easy task at an age of 27 or 27 and a half, and a big, huge task before you, that you got elected as mayor and as councillor on a regional party base, which of course was a narrow base. But then you had to look at the demography of Karachi. It was an ethnic mix, religious mix, sectarian mix. They were all Pakistani from every regional background, every ethnic background, and then it was and it is the national city, the only national city in Pakistan, the cosmopolitan city in Pakistan, the diverse city in Pakistan. And then at the same time, the bread earner, the hub of economy and the engine of growth of Pakistan also. So it was a big responsibility. So एक साल तो सारी चीजें समझने में लगा, of course. But then there was no looking back. And the first flyovers, signal-free corridors, and big projects like that began to fall in place. और फिर हमने सारे development के काम किए. And उस ज़माने में I was able to bring in 10 crore additional daily water supply to Karachi. K2, I completed that project, K2 ka. Then Mustafa Kamal came as the mayor and he and Musharraf Saab completed K3. But that was the last water that we were able to get, जो additional water. 13-14 सालों से कराची में no addition of water has taken place. एक कतरा पानी नहीं आया है. तो ये एक बहुत बड़ा challenge है. And we are on the brink of, God forbid, a kind of water rights which may lead to, and the water and economic experts have been regularly saying that the next wars will be on water, the next riots will be on water. So I think this is one big challenge that your generation and we all are facing. तो एक ये बड़ा मसला है. और भी है, garbage collection एक issue है. We don't have a very self-contained, modernized system of garbage collection and disposal. Then we don't have a revamp of, or we have not changed जो 70 साल पुरानी लाइन है, 70 years old. ट्रीटमेंट प्लांट्स हमारे पास नहीं है, रिसाइकलिंग प्लांट्स हमारे पास नहीं है. तो हमारा एक बड़ा चैलेंज सेवरेज डिस्पोजल का भी है. एंड देन द ट्रांसपोर्टेशन में हमारा चैलेंज, वी डोंट हैव एनीथिंग इन पब्लिक सेक्टर, नो पब्लिक ट्रांसपोर्ट एट ऑल. लाहौर हैज इट, रावलपिंडी हैज इट, इस्लामाबाद हैज इट, मुल्तान इवन हैज इट, और इस्लामाबाद के पास है, पिशावर में है. बट कराची इज द ओनली सिटी, द रेवेन्यू जनरेटर विच कंट्रीब्यूट 60-70% to the kitty of Pakistan. जो पूरा यानी कराची चलता है तो पाकिस्तान चलता है, लेकिन कराची does not have a public sector transport. So हमने कोशिश की थी कि 2 कॉरिडोर पर एक मास ट्रांजिट लाइट रेल ट्रेन हम ले आए. But for some reason the bureaucracy in Islamabad and Punjab did not support me when I was the minister for local government. I was the mayor between 1988 and 1992, और उसके बाद 95, 6 and 7. But in 97, 98, I was the Minister for Local Government in the Provincial Cabinet of Sindh. उस वक्त में local governments mayor नहीं थे, local council नहीं थी, लेकिन ये elections provincial government के हुए थे, and we were in the provincial assembly and provincial government. तो मकसद ये कि local governments have been the forgotten entity. Responsibility devoid of authority is not for an effective government. And all over the world, whatever progress and development we see, what the world is today, we all know कि कहाँ आज पूरी दुनिया खड़ी. But I think we don't want to know that how. What the world is, where it is today, we know it. But how the world is where it is today, we just don't want to know. हम वो पेन नहीं लेना चाहते. बहुत सारी bitter pills है, वो swallow नहीं करना चाहते कि हम वहाँ तक पहुँच सके. कराची के जरिए से पाकिस्तान को हम 22nd century में ले जा सके. I think unfortunately our ruling elite or the political policy makers or whosoever is the policy in the policy echelons of power, unfortunately they don't want to address the key issues that that haunt the chronic ailments that affect the political, social and economic development in Pakistan. So there are forces of retardation, there are chronic ailments like feudalism, like over-centralization of power. To begin with, it was in the center only.
Then after 18th Amendment, a lot of powers, authority and resources were devolved from center to the provinces. But unfortunately, this did not go to the logical end, and the powers, authority and resources from the provinces were not further devolved down. So Article 7, Article 32 and Article 148 in the Constitution were not complied with. तो उनको नहीं पूरा किया गया. तो इस वजह से ये issues अब रहते हैं कि there is over centralization of resources and power in the provinces which need to be devolved. Article 148 spirit, and fortunately enough for the first time जो हमारी 35-year जो struggle है उसमें पहली बार one of the state institutions, one of the constitutional institutions in Pakistan, that is the Supreme Court of Pakistan, on my petition which I filed in 2016, that the local government laws in all the provinces and particularly in the province of Sindh does not meet the requirement of Article 148, does not comply, Article 148. And fortunately enough, after a wait of 6 years, after a wait of 35 years long political struggle, and after a wait of 5-6 years of this judicial struggle, we fortunately and finally we were able to get what we actually wanted. तो पहली बार हमारे मौक़िफ़ को एक स्टेट इंस्टीट्यूशन ने माना, इस पे भी तालियां बनी. We are just in the midst of winter are giving way to a very small spell of spring, और हम गर्मियों की तरफ जा रहे हैं. तो I think cold is still haunting us. तो तालियां बज नहीं रही थी, मैंने कहा कि मैं खुद इनवाइट करूं कि तालियां बजें. Anyhow, ये तो मेरी political struggle है. And while I was and we had faced good times, bad times, और in bad times मेरी पार्टी ने भी did not do full justice to me also. I was on the driving seat when the party would go through the rough patch and rough ride. So I would defend my party, my leader, और ये मेरी मुश्किल थी. और जब अच्छा वक्त होता था, I would be asked to take the back seat, और आगे की सीट पर कोई और लोग होते थे. अच्छा, फिर पार्टी में भी खराबियां आई और उसमें एक जमीन पर कब्जा था. तो अगर दूसरी पार्टी में करप्शन था, तो there was one good thing about our party and MPM, that it was a unique political phenomenon, combination of youth coming from middle class, educated background, and a secular party. That without any discrimination of religion, sect, creed, caste, language, and your ethnic and regional belonging, you try to bring people from all background together. शुरू रीजनल उससे किया था, but very soon we realized our potential that we are a middle class youth educated phenomenon. So we had to open our doors to other people from other ethnic. So फिर हमने महाजर से we became मुत्तहिदा, and literally we tried very sincerely, very seriously to become a national party. But unfortunately, the civil aviation of the politics of Pakistan did not allow our national aircraft to take off. हमें एयरपोर्ट पर ही रोक दिया जाता था, हमें लोकल इश्यूज में ही इंगेज कर दिया जाता था, एंड वी वर नॉट एबल टू बिकम नेशनल. जबकि हमारी इंस्टिंक्ट थी, हमारी नेचर थी, हमारा पोटेंशियल था, हमारी आइडियोलॉजी की बेसिस थी. उसके बावजूद इस सारी पॉलिटिकल स्ट्रगल में आई हैड बीन इनटू जेल्स 2, 3, 4 टाइम्स. 3-4 बार मैं जेल भी गया. और उस जमाने में कहते थे कि जो इनकार्सिनेशन है एंड जो ये जेलों में जाना, ये भी एक यूनिवर्सिटी है और वहाँ पढ़ने का मौका मिलता है, आपको सोचने का मौका मिलता है. तो मुझे बहुत मौका मिला. बट देन आई सॉ द टफेस्ट जेल और इम्प्रिजनमेंट अमंग्स माई फ्रेटर्निटी यानी माई कंटेम्पररीज. तो मुझे अटक जेल भी जाना पड़ा, और अटक जेल में मुझे ब्रेक करने के लिए मेरे नर्व्स को मुझे अटक फोर्ट में रखा गया, जहाँ शाहजहां was kept by औरंगजेब आलमगीर 7 साल का. और वो एक डंजन था, काल कोठरी, 6 by 4 feet, and it was a very chilly winter, cold. अटक दरिया के साथ ही अटक किला बना हुआ है, और there was passage of air was there, ventilation was there, but no light, sunlight would come in. Only a bulb would lit over your head. 6 ब्लैंकेट मैंने अपने नीचे बिछाए थे, 6 ऊपर. Even then I was not able to read
from the cold, very chilly cold of अटक. मुझे उससे मुश्किल, I was not able to manage that. तो मुझे 3 दिन वैसे ही रखा. मुझे जान नमाज भी नहीं दिया गया, कुरान शरीफ भी नहीं दिया गया था, लिखने के लिए कुछ नहीं दिया गया था, और सामने भी ग्रिल नहीं थी. 3 side there was wall, but the front door was also not see through. It was also an ironclad, एक लोहे का दरवाजा था. तो it was like your kith and kin had dropped you into a grave आपके मरने के बाद. और फिर मरने के बाद कहते हैं कि फरिश्ते आते हैं आपका हिसाब किताब करने, बट नो फरिश्ते, नो एंजल्स केम फॉर 3 days. 3 दिन तक किसी ने पूछा नहीं. तो इट वॉज जब ये जो मेंटल टॉर्चर था was the aim of the purpose was to break you. लेकिन I think I was the only amongst the other my contemporaries who were also languishing in that अटक किला. तो उसमें से मैं था. मेरा से ब्लड प्रेशर 110/70 नॉर्मल था, वो ज्यादा से ज्यादा 120/80 हो गया. तो द PF डॉक्टर वुड विजिट मी, तो वो मुझे सल्यूट करके जाता था कि हमने बहुत कम ऐसे लोग देखे जिनके इतने स्ट्रॉन्ग नर्व्स हैं. एंड माइंड इट दैट आई वाज कमिंग फ्रॉम ए मेमन कम्युनिटी बैकग्राउंड. और मेमन्स के लिए ये कहते हैं कि बहुत डरपोक भी होते हैं और बहुत पॉलिटिक्स में भी नहीं आते. बट मुझे लगता है कि मुझे वक्त और हालात ने जब पॉलिटिक्स में भेज दिया तो इसमें कोई ना कोई मकसद था. फिर वी डिड गुड लेजिस्लेशंस, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स. कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज वाज एस्टैब्लिश्ड बाय मी, अल्हम्दुलिल्लाह. देन अब्बास की अटक जेल में जाने के बाद फिर अटक के फोर्ट में हम थे, ओपन उसमें. फिर उसके बाद कराची में, लांडी में, कराची सेंट्रल प्रिजन. एंड आई वाज द फर्स्ट NAB accused to be acquitted honorably by Supreme Court. अल्हम्दुलिल्लाह, जिस पे भी आप तालियां. तो बाकी सबको सजा हुई, फिर सुप्रीम कोर्ट में गए या कहीं और से 4 साल बाद वो एक्विट हुए या उनको सजा हो गई, और या प्ली बार्गेन किया उन्होंने. लेकिन आई डिड नॉट डू प्ली बार्गेन बिकॉज आई नॉट कमिटेड एनी क्राइम, और कोई मैंने करप्शन नहीं की थी. एंड मैं रहता हूँ इन अ वेरी मॉडेस्ट नेबरहुड विच इज कॉल्ड PIB कॉलोनी, और वहाँ बहुत छोटे घर हैं और मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास एक कम्युनिटी वहाँ रहती है. एंड आई लिव्ड देयर ऑल अलोंग माय लाइफ. मैं जब क्लास 1 में वहाँ पर आया था तो उस वक्त से मैं वहीं पर रह रहा हूँ. तो मैंने आई थिंक आई एम अ वेरी कंटेंटेड पर्सन. मैंने अपनी कोई ख्वाहिशात को बहुत बढ़ाया नहीं कि मुझे डिफेंस या क्लिफ्टन जाना है या सोसाइटी या गुलशन इकबाल या कहीं और KD स्कीम में जाना है. सो आई एम वेरी कंटेंटेड. अच्छा, मैं दूसरा जाहिर मुझे कंटेंशन नहीं होती, मुझे कहीं जाना होता तो आई वुड हैव मिंटेड मनी एंड आई वुड हैव प्रिंटेड नोट्स आल्सो. तो मैंने ना मनी मिंट की ना नोट्स प्रिंट किए, ये भी मैंने अल्लाह का शुक्र है नहीं किया. इस पे भी तालियां. तो इसके बाद ये तो मेरी पॉलिटिकल स्ट्रगल थी. अब मैं थोड़ा अपने पर्सनल लाइफ में थोड़ी सी बात कर लेता हूँ. अच्छा, उसके बाद फिर एक बड़ा हिस्टोरिकल मूवमेंट था. आई एम सॉरी, मैंने थोड़ा ज्यादा टाइम ले लिया. तो उसमें in 2016 a time came when I had to make the most crucial decision in my life, political life, and that was to part ways from my supremo, my boss, who was in London for the last so many years. तो मुझे उनसे अलग होना था. उन्होंने एंटी पाकिस्तान स्लोगन्स रेज किए थे on 22nd of August 2016. So I saw the line coming and I saw that the line had come. तो फिर मुझे एक स्टेप लेना था to save more than 10,000 of my workers from being for no crime of theirs. उनको सजा मिलती, वो पकड़े जाते. तो मैंने उनको बचाने के लिए then to stand by the side of Constitution of Pakistan, State of Pakistan, and the country of Pakistan. मैंने डिसाइड किया कि भाई I have to part ways. तो मेरे लिए बहुत मुश्किल, but I think I was the only person in my party that could have taken this decision. Otherwise, ये middle class phenomenon, इस पे भी तालियां बजती हैं.
I deserve some applaud on this also, इसीलिए मैंने अच्छा now moving on from this, and I was in complacency, मुझे खुशफहमी थी कि now whatever wrongs had come in the party, like we were a big allegation was attributed, perception is stronger than reality, कि China getting और कुछ एम्यूनिटी प्लॉट पर हमारे नाम पे लोगों ने कब्जा किया और वो गलत काम था, and there were so many voices in the party even then. We did not make those voices public, but there were voices in the party जो कहते थे कि भाई this is wrong, and people will become disenchanted, will become disillusioned, and they will distance away from us, हम ये ना करें. लेकिन लोगों ने नहीं माना, उनको ग्रीड थी और खराबी हुई, and then a downfall and a countdown started in him. फिर हम नीचे आना शुरू हुए, इतना हमारा राइज था और हम नीचे आना शुरू. अभी चाइना कटिंग ने हमें इतना बदनाम किया कि जो Xi Jinping, the president of China, when he was visiting Pakistan, and there was a state dinner hosted in his honor by Yusuf Raza Gilani, the then Prime Minister. I was the member of his cabinet as Minister for Overseas Pakistan. तो जब he was introducing all of us to the Chinese president, तो मुझे जब इंट्रोड्यूस कराया डॉक्टर फारूक सत्तार फ्रॉम MQM पार्लियामेंट्री लीडर, यूसुफ रजा, ओ MQM, वो उसकी आंखें खुली रह गई, एंड ही टुक माय हैंड इन हिज हैंड और मुझे अलग ले गया, एंड देन ही आस्क्ड मी, चाइना के ब्रदर व्हाट इज चाइना कटिंग. अभी चाइना का प्रेसिडेंट अगर पूछे, हम इतने बदनाम थे कि हमारे साथ चाइना भी बदनाम हो गया. तो मैंने उनसे कहा कि भाई ये मुन्नी मुफ्त में बदनाम हो गई. There is no fault of China, but unfortunately it is a conspiracy against MQM and China both. So we both should join hand and expose the main encroachment in Karachi. This China cutting would have illegally used up only 5% of the total encroached lands in Karachi. 5%. The rest 95% was being done by different nationalist group, different political parties, and we were singled out. और हमें कहा जाता था कि हम ये करें, हमारे लोग करें. तो मैंने कहा, then he said, what is that rest 95% of the cutting? मैंने कहा, that is American cutting and Russian cutting, and let's join hands और उसको expose करते. तो ये सारी struggle है कि to defend your cause, even if there are so many wrongs in your rank and file, but then you have to overall defend your goods, which have been hidden behind a kind of a very strong perception. तो आप अपने परसेप्शन को और गलत चीजों को ना डिफेंड करें, लेकिन अपनी अच्छी चीजों को. भाई मिडिल क्लास देखें, वी यूज्ड टू, मैंने कभी इलेक्शन में एक पैसा खर्च नहीं किया. इवन द फीस 16, आज तो 16,000 या 25,000 की फीस है. नॉमिनेशन फीस फॉर योर कैंडिडेचर, वो भी मैंने अपनी जेब से नहीं देता, वो पार्टी के फंड से आती है. और पार्टी का फंड कंप्राइजेज लाइक द फंड्स विच जो मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली, अ ग्लोबल मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट उन्होंने चलाई थी. तो उन्होंने फंड्स, सर सैयद अहमद खान, द फर्स्ट एल्मा मैटर विच गेव वे टू द राइज ऑफ मुस्लिम्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी. तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के फंड्स किस तरह जमा हुए? 2-2 रुपए, 4-4 रुपए, 1-1 रुपए, 4-4 आने. तो मेरे ख्याल में हमारा भी जो हमारी स्टार्ट थी वो इसी तरह थी. तो ये एक मिडिल क्लास इमेंसिपेशन है जो एक सप्रेस्ड क्लास को यूज करना. देन यू हैव टू हैव एन आइडियोलॉजी. सो व्हाट शुड बी आवर आइडियोलॉजी? नॉट लेफ्ट, न राइट, न प्रो रशियन, न प्रो अमेरिकन, न प्रो चाइनीज, बट इट हैज टू बी कि वी हैव टू लिव विद आवर हेड्स ऑन. हम सर उठा के जीना चाहते हैं, ये हमारी आइडियोलॉजी. हम सर उठा के चलना चाहते हैं, हम सर उठा के जीना चाहते हैं, हम खैरात नहीं अपना हक लेना चाहते हैं. दिस इज सिंपली कि हमें वी हैव टू रिस्टोर द सेल्फ प्रेस्टीज एंड डिग्निटी ऑफ अ कॉमन मैन. एक आम आदमी पहले जो वो कहता था ना कि भाई दिस इज नाउ और नेवर सिचुएशन इन पाकिस्तान, एंड पाकिस्तान हैज रीच्ड टू द ब्रिंक ऑफ ऑलमोस्ट काइंड ऑफ अ स्टेट कोलैप्स सिचुएशन. हम चले गए. हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि इससे बुरे हालात नहीं थे, लेकिन उस वक्त क्या था कि लोगों की सेविंग्स इफेक्ट होती थी, उनका मेन बजट किचन नहीं इफेक्ट होता था. आज सिचुएशन ये है कि ऑर्डिनरी अ मैन इज हिट बैडली
and an ordinary lower middle class, our daughter and mother, उनका जो किचन है उसमें वो हिट हुई है, उनका बजट हिट हो गया है। अब वो बच्चों की फीस दें, किराया दें, ट्रांसपोर्ट का खर्चा करें या अपने वालिदैन का इलाज करें, ये सारी चीजों में एक आम आदमी पिस गया है। तो लिटरली दिस इज नाउ और नेवर सिचुएशन। देयर आर एक्सटर्नल चैलेंजेस, देयर इज सम रिसर्जेंस ऑफ एक्सट्रीमिज्म, टेररिज्म एंड तालिबान हैव रीसरफेस्ड। अभी अफगानिस्तान की बॉर्डर पे पाकिस्तान, अभी 5 पाकिस्तान के आर्मी के जो थे जवान और ऑफिसर्स, उनको उन्होंने दे हिट देम और उन्हें मारा है। फिर बलूचिस्तान में थोड़ी सी जो है वो इंसर्जेंसी जो है वो रिसर्च हुई है वहां पर भी। तो थिंग्स आर मतलब दिस जो ये डेवलपमेंट्स डू नॉट ऑगर वेल फॉर आर वेरी स्टेबल एंड पीसफुल फ्यूचर विच कुड गारंटी आर वेरी स्मूथ डेवलपमेंट प्रोग्रेस इनटू 22nd सेंचुरी। और हम भी दुनिया की आंखों में आंखें डाल के बात करें, दुनिया के साथ चलें, हमारे लिए इतना आसान नहीं है, हमारा टास्क बहुत हो गया है। लेकिन बट देन आई हैव माई बिलीव इन माई यूथ which is the bulk of my population, at least, and it is a ticking bomb also at the same time. But we have to channelize this energy, we have to channelize this potential, and have to engage this youth into the national construction and development of Pakistan. हमें इनको engage करना है, इनके disillusionment को, इनके disenchantment को निकालना है। तो मेरा narrative, after I had been stabbed in the back by my own colleagues because of the vested interest which has डीपली एंट्रेंच इन माई पार्टी। मेरी पार्टी में भी जब ये मफाद लोगों का इतना नीचे चला गया तो उसके बाद मेरे लिए भी मुश्किल हो गया उनके साथ लड़ना। सो मुझे लंदन से ही आई हैड नॉट टू पार्ट माई वेज फ्रॉम लंदन विद लंदन, बट देन आई हैड टू पार्ट वेज विद माई कॉलीग्स इन कराची ऑल्सो। तो मैंने अपना एक ग्रुप बना लिया ORC, बट रिस्टोर द ओरिजिनल एमके, the MK which was known for its discipline, the MK which was known for its middle class background, the MK which was known for its principles that selection would be only be on merit, and there would be no quota in the party, and then there will be no place for anybody from middle class to become a feudal lord or and begin to play like a god and wreak havoc on the ordinary workers and people of Karachi. And तो हमने उसी MK को या उसी phenomenon को, किसी भी नाम से इस phenomenon को ले ले, एक मिडिल क्लास, एक जेन्युइन, एक एनलाइटन phenomenon को हमें लाना है। तो उसमें I see you may not come and join politics directly, but then you have to keep an eye on politics, because it is only going to ensure our combined survival, our survival as a nation, and then for us to have some chance to be counted amongst the community of nations। पूरी दुनिया में अगर हमारी कहीं गिनती होनी है तो इसी तरीके से होगी। तो मेरे ख्याल में हमें इन चीजों का भी ख्याल रखना है, ऑल ऑफ यू। तो मैं एक बात बता दूं कि जब ये सिचुएशन हो गई, जब मेरे अपने लोगों ने मेरे साथ ये किया, तो मैंने कहा ठीक है, कि सोचता हूं कि वो कितने मासूम थे, सोचता हूं कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए, देखते हमने पत्थर से जिनको बनाया सनम वो खुदा हो गए, देखते। तो मैंने कहा कि तो मैंने भी कहा कि आई हैव लर्न 3-4 थिंग्स जो मेरी जिंदगी में जो क्रक्स है, नाउ आई एम पुटिंग बिफोर यू। एक तो ये कि आइडियोलॉजी, एम्पावर अ कॉमन मैन, उसकी इज्जत नफ्स, उसकी डिग्निटी को रिस्टोर करना है। दैट शुड बी आवर नज़्मुल एंड आवर होल पर्पस ऑफ पॉलिटिक्स, नंबर 1। नंबर नाउ हाउ टू डू दिस, इफ वी स्टिक टू दिस एंड स्ट्रिक्टली एडहियर टू दिस आइडियोलॉजी, एम्पावर अ कॉमन मैन, तो हमें क्या करना है, सिंसियरिटी with your cause, with your ideology, with your people, अपने लोगों के साथ सिंसियर, खुलूस, अखलास। दूसरी चीज selflessness, that God will look after me, Allah will look after me, I have to look after the man form, यानी ह्यूमन काइंड, हमें इंसानों को, मैन काइंड को देखना है। तो मेरी जरूरत अल्लाह पूरी करेगा, मुझे लोगों की जरूरतों को पूरा करना है। तो एक डेडिकेशन, ये पैशन होना चाहिए। तो सिंसियरिटी, selflessness, and the third thing is steadfastness, 3S। ये सिद्धम शिवम सुंदरम इंडिया की मूवी थी, 3S ही वो नहीं थी। ये सिंसियरिटी, सेल्फलेसनेस एंड स्टेडफास्टनेस, साबित कदम होना कि कम व्हाट मे, यानी यू मे हैव टू स्विम अगेंस्ट द टाइड ऑफ टाइम। आपको
जो बाद मुखालिफ से ना घबरा ए अकाब, बाद मुखालिफ से ना घबरा ए अकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तो लोग तो ऊंचा उड़ते हैं, उसी हवा में ऊंचा उड़ते हैं। तो हमें हालात का मुकाबला करना, गिव अप नहीं करना। तो मैं समझता हूं कि अगर आज ये मोटिवेशन आए हमने कि हमें गिव अप नहीं करना, तो आई कैन सेफली एंड कॉन्फिडेंटली सेंड अ मैसेज फ्रॉम मिलेनियम रूट्स कॉलेज टू दी 220 million people of Pakistan कि आई हैव सम बेसिस टू से विद कॉन्फिडेंस कि घबराना नहीं। कोई और अगर कह रहा है घबराना नहीं, कोई और अगर कह रहा है घबराना नहीं है, तो आई डोंट नो व्हाट इज हिज बेसिस, मुझे नहीं पता। आई एम एट अ लॉस टू अंडरस्टैंड कि भाई उनके पास क्या बेसिस है। तो लेकिन हमारे पास बेसिस है कि दिस इज द एज ग्रुप विच व्हेन stood by Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, an impossible state of Pakistan became possible. So अब no looking back, sky is the limit। और हमें हमारे पास बहुत सारे, हम किसी और सिटिंग में ना, we will devise ways and means to enter into politics, ways and means to exert pressure on the political processes, to ways and means to influence the policy making in different political parties. You cannot directly become an influence and in your own self become important people in parties, become policy makers। आप policy makers नहीं बन सकते, लेकिन you have to find ways out to influence the policy making in parties। आप 5 डिमांड्स रखते हैं इलेक्शन से पहले, 50,000 यूथ प्रेस क्लब पे जमा हो जाए एक साल पहले इलेक्शन से, और कहें कि वी डिमांड फ्रॉम एवरी पॉलिटिकल पार्टी इन इट्स हेड कि हमें ज्यादा लोग पढ़े लिखे दें, हमें कुछ हमारी बेटियां, हमारी जो है उनकी भी रिप्रेजेंटेशन दें कि हमने विमेन एम्पावरमेंट के नाम पे व्हाट वी हैव डन, वी हैव डन and ensure their representation in their own quota। There is a quota system, there are reserved seats for women in Senate, National Assembly, Provincial Assembly, in the local government councils। हमें हमारी बेटियों और बहनों के लिए डायरेक्ट इलेक्शंस में भी, हमें कॉन्स्टिट्यूंसीज में भी उनको फील करना है, वहां पर भी उनको डायरेक्ट इलेक्शंस में उतारना है। एटलीस्ट 20% टू बिगिन विद, देन 40%, एंड अ टाइम में कम वी सी 50% कैंडिडेट्स कमिंग फ्रॉम द मेल। अब लेकिन वी हैव टू देन हैव सम काइंड ऑफ अ 50-50 quota between our girls and boys in politics। वरना मैं देख रहा हूं कि what has happened into the complexion of Karachi University कि it used to be एक वो क्या कहते हैं उसे, जो co-education institution कि लड़के लड़कियां दोनों पढ़ते थे, बट 70% of the Karachi University students are गर्ल्स ना, लड़कियां पढ़ रही, बेटे तो पढ़ ही नहीं रहे। उसकी वजह मुझे नहीं पता कि लड़के नहीं पढ़ रहे, निकम्मे हो गए बहुत ज्यादा, ऐसा है। अच्छा, और 70% ऑफ स्टूडेंट्स इन कराची यूनिवर्सिटी, तो जिन्ना विमेन यूनिवर्सिटी का नाम तो सुना था ना, कराची यूनिवर्सिटी इज ऑल्सो विमेन यूनिवर्सिटी बाय एंड लार्ज। JSMU, सिंध मेडिकल कॉलेज, 80% आर गर्ल्स एंड ओनली 20% आर डॉक्टर्स। अच्छा, उन 80% में से जो आधी होंगी बेचारी, शादी के बाद उनके ससुराल वाले अलाउ नहीं करेंगे कि भाई आप अपने बच्चों की डॉक्टर हैं, अपने ससुर की डॉक्टर हैं, सास की डॉक्टर हैं, अपनी मदर इन लॉ की हैं, सिस्टर इन लॉ की हैं, उनको पढ़ने नहीं देंगे। तो ये भी गलत है, हमें इस ट्रेंड को भी देखना है, इसकी इंप्रूवमेंट भी, ये सोशल प्रॉब्लम है। लेकिन सोशल प्रॉब्लम बड़ा कहाँ है कि लड़के क्यों नहीं पढ़ रहे। तो मुझे लगता है गलती हुई किसी टीचर से। ग्रेड 9 में किसी टीचर ने कह दिया था, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन, ऐसा हुआ नहीं, ऐसा हुआ। तो बिहाइंड एनी देयर इज अ हैंड ऑफ अ वुमन। मैंने कहा कि टू हेल विद द बुक्स, किताबें करो बंद और निकलो उस लड़की को ढूंढने। और फिर अल्लामा इकबाल आंखें फाड़ के देख रहे हैं कि मोहब्बत मुझे उन जवानों से है, सितारा पे जो डालते हैं, सितारों पे नहीं डालते, वो सितारा पे डालते हैं, एक कॉलेज में, एक मोहल्ले में। तो ये, एंड आई थिंक वी हैव टू कम आउट ऑफ दिस quagmire also। हमें इससे भी बाहर निकलना है
कि भाई अपने हिस्से की तुम्हें, यू विल फाइंड द राइट वुमन एट राइट टाइम। मतलब इसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं कि पूरी पूरी रात जागे और सारे मुफ्त पैकेजेस को इस्तेमाल करें, सुबह इंटरव्यू के लिए आए तो प्रेजेंटेबल ना हो, और इनोवेशन भी खत्म। अगर पूरी रात जागना भी है तो आप कम से कम अपने रेजर में वो अपने मोबाइल फोन में एक हम चीज और लगा दें, एक बटन दबाया उसमें से रेजर निकल आए, तो चले कम से कम फोन पे बात भी कर लें, शेव भी कर लें, अपना हुलिया ठीक करके आप सुबह चले भी जाए, तो ये भी हो सकता है। लेकिन मेरे ख्याल में ऐसा नहीं हो रहा, तो हमारी इनोवेशन भी खत्म हो गई है, दिमाग बंद हो गया, एक ही जगह पे आके सुई अटक गई है। तो इन चीजों को भी हमें जरा देखना है, हर चीज हो जाएगी, द वर्ल्ड विल फॉलो यू, यू डोंट हैव टू चेंज द वर्ल्ड, अपने पीछे दुनिया को आना। एंड ऑल ऑफ यू, हम सब एवरेज होंगे तो ज्यादा अच्छा है। सब ये ना देखें कि हर आदमी अदीब उल हसन रिजवी बन सकता है, हर लड़की नूर जहां बिलग्रामी इंडस वैली की जो वो बन सकती है, या हर आदमी सैलानी वेलफेयर का वो जो बशीर फारूकी है या जफर अब्बास है, ये जो है, हर आदमी उस लेवल पे नहीं पहुंच सकता। आइंस्टाइन वाज एन एवरेज स्टूडेंट, न्यूटन वाज एन एवरेज स्टूडेंट। एवरेज स्टूडेंट्स के पास ज्यादा मौके एक्सेल करने, तो एवरेज रह के भी बहुत कुछ हो सकता है। तो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को ना आने दें। देखिए मैं भी क्लास 5th और इवन BBS में भी आई वाज अ वेरी शाई काइंड ऑफ अ फेलो। मैं एक शर्मीला फारूक था, फारूकी नहीं, शर्मीला फारूक, मैं शर्मीला फारूक था। लेकिन देन आई फाउंड कि वो जो बैतबाजी होती है ना, शेरों का मुकाबला, तो मुझे शेर जल्दी आगे जाते थे। तो आई बिगेन टू गेट माई कॉन्फिडेंस कि भाई मेरे पास अल्लाह ताला ने एक चीज दी है। तो फिर उससे आई देन वॉन अ ट्रॉफी इन माई स्कूल, बैतबाजी में अशार में मुझे ट्रॉफी मिली। फिर वहां से आई डिड नॉट लुक बैक। फिर कॉलेज में डिस्क्रिमिनेशन, कोटा सिस्टम, आई सेड कि इनजस्टिसेस के खिलाफ खड़े होंगे। तो देन वी स्टार्टेड, वी बिगेन अ स्ट्रगल एंड अगेन नो लुकिंग बैक। और व्हेन द गोइंग गेट्स टफ, द टफ गेट्स गोइंग। तो ये हमें इख्तियार करना है, सिंसियरिटी, सेल्फलेसनेस एंड स्टेडफास्टनेस। तो ये चीजें हम करेंगे तो आई थिंक विल बी बेटर ऑफ, हमें रिग्रेट नहीं होगा। मैंने प्लास्टिक सर्जरी में ज्यादा नहीं किया, तो आई थिंक आई वाज एबल टू डू सम एम्पुटेशंस, सम रेडिकल सर्जरी ऑफ ट्यूमर्स इन आवर पॉलिटिक्स एंड आवर सोसाइटी। और अब ये उम्मीद है कि कराची इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज एवरीबॉडी सिटी, सारे पाकिस्तान के लिए नेशनल सिटी, इकोनॉमिक इंजन ऑफ इकोनॉमी एंड ग्रोथ। तो इसका मतलब एक बात हमें 22 करोड़ लोगों को एंड पॉलिसी मेकर्स को याद दिलाना, ये हमें एक तो सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स में इन्फ्लुएंस डालना है कि मिडिल क्लास हो, यूथ हो, विमेन, गर्ल्स, डॉटर्स उसमें ज्यादा हो। नेक्स्ट इलेक्शन में हम इन्फ्लुएंस करें सारी पार्टीज के। और दूसरा हमारा इन्फ्लुएंस जो है वो किस चीज पे आना चाहिए, क्या करें, दूसरा हमारा इन्फ्लुएंस पॉलिसी मेकिंग पे आना चाहिए कि एजुकेशन और हेल्थ को हमें इम्पोर्टेंट, उस पर ज्यादा बजट आना चाहिए। और गवर्नमेंट स्कूल्स भी अच्छे हों। तो हम बहुत सारी और बातें कभी और भी करेंगे इंशाल्लाह। तो कराची की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करना है इस्लामाबाद में, एंड वी हैव टू डू इट इन आवर ओन वेज। तो कैसे करेंगे कराची की इंपॉर्टेंस को? सोशल मीडिया के जरिए से चीजें वायरल करके, लेटर टू द एडिटर मुख्तलिफ उसमें, और जो मीडिया में ब्लॉगर्स वो अपना काम करें। तो बहुत सारी चीजें हम कराची की इंपॉर्टेंस, एंड इट इज a city of every Pakistani to begin with, people who reside in Karachi, no matter what language he speaks, what his mother tongue is, उर्दू बोलने वाला, गुजराती, काठियावाड़ी, मेमन, मारवाड़ी, सिंधी, बलोच, पंजाबी, सराइकी, हजारेवाल, कश्मीरी, गिलगिती बल्टी, इट इज एवरीबॉडीज कराची एंड कराची इज पाकिस्तान। कराची चलता है तो पाकिस्तान चलता है, मेरे ख्याल में याद रखना है। और ये याद दिलाना है नेशनल पॉलिसी एंड पॉलिटिकल ऑडिटर्स को कि हिसाबे मुल्क का बस, ये आखिरी 2 शेर पढ़ा, हिसाबे मुल्क का बस इतना सा गोशवारा है। गोशवारा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स को कहते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स जो फाइल करते हैं। हिसाबे मुल्क का बस इतना सा गोशवारा है, कराची को निकाल के देखा तो सिर्फ खसारा है। कराची को निकाल के देखा तो सिर्फ खसारा है। अब आपकी चीजें तालियां खुद बजा दी है, तो मैं सेफली कहता हूँ घबराना नहीं।
और ये शेर पढ़ूंगा कि बस कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। अरे तुम्हारा सिर्फ वक्त आया है, हमारा दौर आएगा।